Hello everyone, good morning. In this video, we are going to learn a new lesson from the textbook First Flight, unit number 10, the Sermon at Banaras. In this lesson, we are going to see Gautam Buddha. You know very well about him. Okay, Gautam Buddha has given sermon at Banaras that we are going to see in this lesson. So let's start. You can see this activity in your free time. You can perform this activity by your own. Okay, use a dictionary or ask for your teacher's help as you discuss the following question in groups. First is, what is a sermon? Is it different from lecture or a talk? Can this word also be used in a negative way or as a joke? As in, my mother's sermon about getting my work done on time. Okay, so you have to find out what is the mean by sermon, and it can be used, the word it can be used as a joke, so that you have to find out. Find out the meaning of the words and phrases given in the box. First is afflicted with, be composed, dissolution, lamentation, procure, be subject to. These words meanings you have to find out from the dictionary or from anywhere. The third is, have you heard of the Sermon on the Mount? Who delivered it? Who do you think delivered a sermon at Banaras? So this you have to find out, who has given sermon at the mount and who delivered it. Okay, now let's start the lesson. Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. Okay, गौतम बुद्धा के बारे में आप जानते ही होंगे. पहले वो एक प्रिंस थे, okay, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम in North India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे तब उनको पढ़ने के लिए, हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए उनको 4 साल के लिए स्कूल में भेजा गया था, और 4 साल के बाद वो मैरिज करने के लिए वापस आए थे. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज befitted रॉयल्टी. ठीक है, और फिर शादी के बाद उनको एक बेटा हुआ और वो उनके साथ 10 साल तक रहे. ठीक है, रॉयल्टी में. ठीक है, वो जो राजपाट था उनके साथ साथ वो 10 साल तक वहाँ पे रहे. एट अबाउट द एज ऑफ 25, द प्रिंस heretofore मीन्स until now, यहाँ से मीन्स तब से लेके यहाँ तक, shielded मीन्स covered from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. Alms means food. ठीक है, अब जब से वो पैदा हुआ, मीन्स जब से वो पैदा हुए गौतम बुद्ध, ठीक है, तब से लेके अभी तक उन्होंने कभी भी सफरिंग्स देखी नहीं थी कि दुनिया में कितने तकलीफ़ें हैं, वो देखा नहीं था. पर एक बार वो जब हंटिंग के लिए गए तब उन्होंने एक बीमार पर्सन को देखा, एक बुढ़े पर्सन को देखा. ठीक है, और एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी ले जा रहे थे, वो देखा. और लास्ट में उन्होंने देखा कि एक मॉन्क, एक साधु फूड के लिए भीख मांग रहे हैं. तो ये सारे चीज़ें उन्होंने देखी. दिस साइट्स so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. ठीक है, और ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया. ठीक है, अपने बीवी को, बच्चे को, अपने राज्य को, सब कुछ त्याग करने के बाद वो एक स्पिरिचुअल नॉलेज पाने के लिए वहाँ से निकल पड़े. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. ठीक है, वो कितने सालों तक घूमे? 7 years तक वो यहाँ वहाँ भटकते रहे, और उसके बाद वो एक पीपल ट्री के नीचे जाके बैठ गए.
where he vowed to stay until enlightenment come, और वहाँ पर उन्होंने शपथ लिया कि जब तक उनको एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो वहाँ से नहीं खड़े होंगे. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. And after 7 days, 7 दिनों के बाद उनको एनलाइटमेंट प्राप्त होता है और फिर वो उस ट्री को बोधि ट्री नाम देते हैं, मीन्स अ ट्री ऑफ विजडम. और उसके बाद उनको जो नया नॉलेज मिला वो अब सबको बताते हैं. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. And after that, he was known as Buddha. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. ठीक है, sermon means religious or moral talk. Okay, and he has given his first preach or first religious or moral talk at Banaras, most holy of the dipping place. Dipping means bathing place. ठीक है, स्नान करने की जगह. On the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. ठीक है, and the same sermon is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable means something which cannot be understood, जिसको कभी भी समझ ना सकते हैं, वैसे चीज़ को उन्होंने अच्छी तरह से ये सरमन में समझाया है. Now let's see the sermon, means talk. Kisa Gotami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." Okay, now there was a lady whose name is Kisa Gotami, and she had only son. And because of some illness or something, that boy was dead. And Kisa Gotami became mad, and she just asking for medicine to the people to make alive his son, but which was not possible. So neighbors were telling that she has lost her senses because the boy is dead. At length, Kisa Gotami met a man who replied to her request. ठीक है, और बहुत घूमने के बाद किसा गौतमी को एक पर्सन, एक आदमी मिलता है. वो उन्हें बताता है, "I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can." Okay, here thee and thy, these two words you can see, these are the old English words. Okay, I cannot give, thee means you and thy means your. ठीक है, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता, पर मैं एक इंसान को, एक फिजिशियन को जानता हूँ जो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है. एंड द गर्ल सेड, "Pray tell me, please tell me, sir, who is it?" एंड द मैन रिप्लाइड, "Go to Sakyamuni, the Buddha." ठीक है, तुम बुद्धा को जाकर मिलो. Kisa Gotami repaired means went to, repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." ठीक है, वो जाके वहाँ पे क्या बोलती है, "प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे मेडिसिन दो ताकि मैं अपने बेटे को ठीक कर सकूँ." The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend." ठीक है, अब बुद्धा के पास जाते हैं वो किसा गौतमी, और जब मेडिसिन के लिए पूछते हैं तब ये गौतम बुद्धा उनको बताते हैं कि जाओ मुझे एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड दो. पर कहाँ से? उस घर से जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो, वैसे घर में से जाकर मुझे एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड दो, तब जाके मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर पाऊँगा.
Now poor Kisa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many." अब किसा गौतमी मस्टर्ड सीड्स ढूंढने के लिए गांव में निकल पड़ती है। एक के बाद एक घर में जाती है, मस्टर्ड सीड मांगती है और सब लोग मस्टर्ड सीड्स देने के लिए रेडी भी हैं। पर जब वो पूछती है कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है, तो सब बताते हैं कि जीने वाले बहुत ही कम हैं पर मरने वाले बहुत ही ज़्यादा। डू नॉट रिमाइंड अस अवर डीपेस्ट ग्रीफ, और सब लोग ऐसा याद कराते हैं कि हमें प्लीज़ उस दुख को मत याद करवाइए। एंड देर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। ठीक है, और फिर पूरे गांव में घूमने के बाद उसे पता लगता है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी मीन्स एग्जॉस्टेड और वीक and hopeless, and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. Flickered means unsteady. ठीक है, वो लाइट को देखती है किस तरह से वो फ्लिकर कर रही है, अनस्टेडी हो रही है और फिर बुझ जाती है। At last the darkness of the night reigned everywhere. Reigned everywhere means power everywhere. सभी जगह पर अंधेरा छा जाता है। And she considered the fate of man, that their lives flicker up and are extinguished again. ठीक है, अब वो समझ रही है कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी ऐसी ही है, पहले वो फ्लिकर्ड अप होती है और उसके बाद एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है, बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल, yet in this valley of desolation there is path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. Okay, valley of desolation means an area which is filled with deep sorrow. ठीक है, अब वो समझती है कि वो कितनी सेल्फिश बन गई है, क्योंकि डेथ तो सभी के लिए कॉमन है, पर मरने वाला इंसान ये पूरे दुनिया को छोड़कर इमॉर्टल बन गया है। ठीक है, और यहाँ से चला गया। नाउ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, क्योंकि उन्होंने अपनी सारे सेल्फिशनेस को त्याग दिया है और अब वो इमॉर्टल बन गए, जो मर गए हैं उनकी बात है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। ठीक है, अब जो गौतम बुद्धा है वो एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझाते हैं कि जो इंसान है इस दुनिया में उनकी लाइफ कैसी है, फुल ऑफ ट्रबल, फुल ऑफ पेन। ठीक है, बट फॉर देयर इज नॉट means by which those that have been born can avoid dying. ठीक है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो डेथ को अवॉइड कर सकता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। सभी जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं सभी का डेथ डिसाइड है, वो कभी ना कभी मरने वाले हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो वो समझाते हैं कि जिस तरह से पके हुए फ्रूट्स जो होते हैं उनको नीचे गिरने का डर ज़्यादा होता है, उसी तरह से जैसे ही कोई इंसान पैदा होता है तब से लेके उनको डेथ का खतरा रहता ही है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। ठीक है, जिस तरह से मिट्टी के जो मटके बनते हैं वो कभी ना कभी टूटते हैं, उसी तरह से मॉर्टल की लाइफ भी एक ना एक दिन चली जाती है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ।
ठीक है, और साथ साथ में ये समझाते हैं वो यंग हो या एडल्ट हो, पावरफुल हो या फिर ना हो, पाग मीन्स फूल हो या फिर बहुत ही वाइज हो, सबका एक न एक दिन मृत्यु आता ही है. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ. अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस. ठीक है, और साथ में समझाते कोई भी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते. एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, उसी तरह से कोई भी अपने रिलेशन को भी नहीं बचा सकता. मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. ठीक है, ये गौतम बुद्धा बताते हैं जैसे जैसे आप रोते रहते हो वैसे वैसे, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके जितने भी रिलेटिव्स है वन बाय वन उनको ले लिया जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है. जैसे कि किसी ऑक्स को स्लॉटर मीन्स किलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को जहाँ पे कट करते हैं, किल करते हैं, उस जगह पे ले जाया जाता है, उसी तरह से मॉर्टल्स की वन बाय वन डेथ होती रहती है. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड. ठीक है, सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ, अफ्लिक्टेड मीन्स अफेक्टेड बाय सफरिंग ऑफ डिसीज और पेन. ठीक है, तो जो भी वाइज पर्सन होता है वो क्या करता है, कभी भी रोता नहीं है या दुखी नहीं होता है कि कभी ना कभी वो मरने वाला है. वो सोचकर वो कभी दुखी नहीं होता है. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. ठीक है, वो साथ साथ में ये भी समझाते हैं कि अगर आप रोओगे या दुखी होगे पर आपका जो ये सिचुएशन है वो कभी मिटने वाला नहीं है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलने वाला नहीं है. पर उसके ऑपोजिट में क्या होगा, हिज पेन विल बी ग्रेटर, पेन बढ़ेगा, एंड द बॉडी विल ऑल्सो सफ़र. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, yet the dead are not saved by his lamentation. ठीक है, और ज़्यादा रोने की वजह से क्या होगा, वो या तो बीमार हो जाएगा, पेल हो जाएगा, पर उसके इतने सारे एक्सप्रेशन की वजह से, सौरों की वजह से, इतने सारे दुख की वजह से, इतना सारा रोने की वजह से वो मरने वाला इंसान वापस आने वाला नहीं है. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. ठीक है, अगर किसी जिसको भी पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो उनको ये सारे लैमेंटेशन, कंप्लेंट्स सब कुछ त्यागना पड़ेगा. ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. और जो ये सब कुछ त्याग देता है उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसको शांति मिलती है. ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड. ठीक है, जो भी ये अपने दुखों से बाहर आता है, ऊपर आता है, वो ब्लेस्ड होता है. ठीक है, प्रभु का आशीर्वाद उन पे सदा ही रहता है. सो दिस लेसन इज टेकन बाय द सोर्स बेटी रेनशो, वैल्यूज एंड वॉइसेस, फ्रॉम द कॉलेज रीडर. ओके, सो दिस इज द sermon at Banaras by Gautam Buddha. I hope you understood this lesson and will take care about it. You will never cry for your sorrow. ठीक है, आपके दुखों के लिए आप रोते नहीं रहोगे, पर उससे बाहर आओगे और उससे बाहर आने के बाद अपने मन को शांत करोगे. ठीक है, so here you can see thinking about the text, 5 questions are given which you have to write in your notebook. I hope you all have understood the lesson well and do not have any query. But if you have any query and if you want to contact me, you can contact me on your time. Thank you. Have a nice day. Bye bye.